Hello students, in this video we will solve question number 3rd from exercise 1.4. Earlier we have studied algebra of statement, means commutative law, distributive law, associative law, complement law, involution law, conditional law, identity law. Okay, now here we will learn how to use algebra of statement to show that given statement patterns are equivalent. Okay, now question number 3rd is, without using truth table, prove that this statement pattern equivalent to this statement. Okay, then how to show that two statement patterns are equivalent without using truth table. Okay, now look here. First, write down LHS, which is in first bracket P disjunction Q bracket close, conjunction in second bracket P disjunction negation of Q. Okay, it is very simple. Now you can see in both the bracket P disjunction is common. Then you can take P disjunction common from both the bracket. P disjunction. Okay, then bracket close. Remaining statement pattern is Q from first bracket, negation of Q from second bracket, and this conjunction. Okay, all of you know that distributive law. Same, in distributive law you can see here P disjunction is common in both the bracket. Then here you can take P disjunction common from both the bracket, then remaining is Q conjunction R. Okay, then write down here distributive law. By using distributive law. Okay, now next one. In bracket you can see that both the statement are same and one statement is negation of other statement. तो यहां पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, दोनों भी स्टेटमेंट सेम होते हैं और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन होता है. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट सेम है और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन है, बट हमें चेक करना है दोनों स्टेटमेंट के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया हुआ है. कौन सा कनेक्टिव यूज किया हुआ है यहाँ पे? कंजंक्शन. तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, इफ अगर दोनों भी स्टेटमेंट के बीच में अगर कंजंक्शन है तो उसका वो क्या होगा? इक्विवेलेंट टू एफ. तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट के प्लेस पे हमें क्या राइट डाउन करना है? एफ. राइट डाउन पी एज इट इज कंजंक्शन
और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एफ। कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, मेंट लॉ। ओके, नाउ you can see here statement combined with truth table with the help of connective disjunction। तो यहां पे कौन सा लॉ यूज होगा, आइडेंटिटी लॉ। ओके, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, वहां पे स्टेटमेंट के साथ में ट्रुथ वैल्यू होता है और हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में जो ट्रुथ वैल्यू हो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट के साथ में जो ट्रुथ वैल्यू हो फॉल्स केस में यहाँ पे। ओके, और उनके बीच में डिसजंक्शन या कंजंक्शन, डिसजंक्शन जब स्टेटमेंट के साथ में ट्रुथ वैल्यू होगा और उन दोनों के बीच में डिसजंक्शन होगा, तो इक्विवेलेंट किसके होगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा है, पी। सेम आंसर आ गया, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एलएचएस से और हमें आरएचएस आ गया। ओके, कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट देयर आर टू स्टेटमेंट, sorry, negation of in square bracket we have in first bracket p disjunction negation of q implication in second bracket p conjunction negation of q, show that किसके इक्विवेलेंट करना है, p disjunction negation q conjunction negation p disjunction q। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, LHS राइट डाउन कर देंगे। ओके, LHS राइट डाउन कर दिया है। Okay, now look here how to solve it। Now you can see in square bracket there are two open bracket, okay, and among them connective implication is used। Okay, then all of you know that conditional law, in conditional law p implication q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट डिसजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है ब्रैकेट के अंदर, p डिसजंक्शन निगेशन q, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा है, p कंजंक्शन निगेशन q। तो सबसे पहले हमें इम्प्लीकेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके सेकेंड फॉर्मेट के फॉर्म में सबसे पहले हमें इम्प्लीकेशन को राइट डाउन करना होगा। ओके, अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट स्टेटमेंट इसे कंसीडर करना और सेकंड स्टेटमेंट इसे कंसीडर करना। ओके, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट डिसजंक्शन सेकंड स्टेटमेंट। ओके, देन निगेशन ऑफ ब्रैकेट। ओके, देन फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन आएगा p डिसजंक्शन निगेशन q। ओके, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट डिसजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट p कंजंक्शन निगेशन q। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, इम्प्लीकेशन को उसके दूसरे फॉर्मेट में राइट डाउन किया है। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो निगेशन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो सबसे पहले ये निगेशन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन गेट कैंसल। ओके, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, राइट डाउन कैसे करना है, निगेशन ऑफ
P डिसजंक्शन निगेशन Q। ओके, सबसे पहले निगेशन जो ब्रैकेट के बाहर निगेशन है वो फर्स्ट ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, देन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बिकम कंजंक्शन। अब निगेशन कहां पे अप्लाई होगा? सेकेंड ब्रैकेट पे, देन निगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, नाउ फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये भी राइट डाउन करना है, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हुआ है। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया है हमने? कंडीशनल लॉ। ओके, राइट डाउन हियर कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन हमें पता है कौन सा लॉ होता है, वो इन्वॉल्यूशन लॉ होता है। ओके, गेट कैंसल और यहाँ पे स्टेटमेंट रिमेनिंग रहेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आएगा P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन गेट कैंसल, देन कंजंक्शन। हाँ, अब ये जो निगेशन है ये ब्रैकेट में दोनों भी स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज निगेशन ऑफ P। फर्स्ट स्टेटमेंट P है तो निगेशन पहले P पे अप्लाई होगा, एंड निगेशन ऑफ कंजंक्शन बिकम डिसजंक्शन। ओके, एंड निगेशन सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे ऑलरेडी एक निगेशन है, तो इसे कैसे राइट डाउन करना है? निगेशन निगेशन Q। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जो भी लॉ अप्लाई किया हुआ है वो साइड में राइट डाउन करना है। यहां पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है? निगेशन को अंदर लिया था, यहां पे इनवोल्यूशन लॉ राइट डाउन कर देना है। लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, उसे वैसे ही राइट डाउन करना है। P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन निगेशन P निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन गेट कैंसल, और जो स्टेटमेंट रहेगा ओनली वो हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? Q। नाउ यू कैन चेक RHS ऑफ क्वेश्चन एंड जो हमारा लास्ट स्टेप आया दोनों भी सेम है। P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन Q। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है? यहाँ पे इम्प्लीकेशन को उसके दूसरे फॉर्मेट में राइट डाउन करना है, जो क्या होता है? कंडीशनल लॉ। देन नेक्स्ट जो निगेशन ब्रैकेट के बाहर है उसे अंदर लेना है, तो निगेशन दोनों भी ब्रैकेट पे अप्लाई होगा। निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बिकम कंजंक्शन निगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, फिर ये निगेशन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन गेट कैंसल, और फिर ये निगेशन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या शो दैट करना है? इन क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर आर थ्री ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q, सेकेंड ब्रैकेट में निगेशन P कंजंक्शन Q, और थर्ड ब्रैकेट में क्या है? P कंजंक्शन निगेशन Q। और तीनों ब्रैकेट के बीच में जो भी कनेक्टिव यूज किया वो है डिजंक्शन, और हमें इक्विवेलेंट शो करना है P डिजंक्शन Q। ओके, सबसे फर्स्ट हम ये टू ब्रैकेट कंसिडर करेंगे। इट्स ऑन यू कि तुम्हें फर्स्ट सेकंड कंसिडर करना है या फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसिडर करना है। ओके, हमने फर्स्ट और सेकंड क्यों कंसिडर किया? बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट में से हम कॉमन ले सकते हैं कंजंक्शन क्यू। ओके, इसके लिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट कंसिडर किया। देन राइट डाउन हियर पी। जब हम कंजंक्शन क्यू कॉमन लेंगे तो यहां पे रिमेनिंग क्या बचेगा? पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ पी, ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया? कंजंक्शन क्यू। ओके, और यहां पे ये पूरा वैसे ही राइट डाउन करना है। डिजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। कौन सा लॉ हमने यहां पे अप्लाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसको साइड में राइट डाउन कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे ये फर्स्ट ब्रैकेट में देखना है पी डिजंक्शन निगेशन पी, बोथ दी स्टेटमेंट आर सेम, वन स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ अदर, और उन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया हुआ है? डिजंक्शन। तो वहां पे क्या आएगा? क्या राइट डाउन करना है फिर हमें? इसका आंसर होता है टी। ओके, टी। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है। यू कैन सी हियर, जब दोनों भी स्टेटमेंट सेम रहेगा और एक दूसरे का नेगेशन रहेगा, बीच में डिसजंक्शन है, तो वो इक्विवेलेंट टू टी होता है। ओके, तो यहाँ पे राइट डाउन करना है टी। टी, ये पूरा ब्रैकेट टी आ गया। देन डिसजंक्शन, सॉरी, कंजंक्शन क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब जो बाहर है ब्रैकेट के उसको राइट डाउन कर देना है। ओके, एंड पी कंजंक्शन सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज राइट डाउन करना है, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। कौन सा लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो राइट डाउन करो कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, in first bracket you can see that statement combined with truth table with the help of connective conjunction। तो कौन सा लॉ यूज करना है यहाँ पे? स्टेटमेंट विथ ट्रूथ टेबल ट्रू कनेक्टेड विथ कनेक्टिव कंजंक्शन इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू है। ओके, तो हमें जो भी स्टेटमेंट है उसे राइट डाउन करना है वहां पे। क्यू डिसजंक्शन, ये वाला डिसजंक्शन, ये पूरा वैसे राइट डाउन कर देना है। पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, कौन सा लॉ हमने यहां पे अप्लाई किया? आइडेंटिटी लॉ। ओके, नाउ अगेन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन क्यू डिसजंक्शन P in next Q disjunction negation Q. Okay, then this can be written as Q disjunction P. Okay, now conjunction Q disjunction negation of Q.
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Distributive law. Okay. Now look here. In second bracket, both the statement are same. One statement is negation of other, and both the statement are connected with connective disjunction. तो यहाँ पे क्या आएगा, same. You can see here, if both the statement are same, connected with disjunction, equivalent to capital T. ओके तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, सेकेंड ब्रैकेट के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल टी। तो फर्स्ट ब्रैकेट राइट डाउन एज इट इज, क्यू डिजंक्शन पी कंजंक्शन। नाउ इन प्लेस ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्या राइट डाउन करना है, टी। और कौन सा लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ। Okay, now you can see this bracket combine with truth table with the help of connective conjunction। तो यहाँ पे अपना जो ये, इसको हम एक स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। ये स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ट्रू के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया होगा, कंजंक्शन। नाउ आइडेंटिटी लॉ में हम चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू के बीच में अगर कंजंक्शन होता है तो इक्विवेलेंट होता है स्टेटमेंट इटसेल्फ के। ओके यहाँ पे स्टेटमेंट पी था और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, क्यू डिजंक्शन पी। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट वैसे ही राइट डाउन कर देना है, क्यू डिजंक्शन पी। कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ओके स्टूडेंट यू कैन सी हमें आंसर क्या चाहिए, पी डिजंक्शन क्यू, बट जो हमने सॉल्व किया हमें क्या है यहाँ पे आंसर, क्यू डिजंक्शन पी। तो एक और लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हम उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो क्यू डिजंक्शन पी कैन बी रिटन एज पी डिजंक्शन क्यू। ओके नाउ प्रूव हो गया ये, यहाँ पे साइड में लिख देना है हमने कौन सा लॉ यूज किया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके